Shall I start? Yes, ma'am. Okay. So perquisite में सबसे पहली है section 17 subsection 2 clause 4. It is regarding to the monetary perquisites or obligations of employee met by employer. इसका मतलब obligations किसकी है? employee की, और उनको पूरा कौन कर रहा है? employer. ठीक है. और perquisites किस nature की है? monetary. हम लोगों ने अभी जस्ट सीखा है कि मॉनेटरी परक्विजिट्स आर ऑलवेज फुल्ली टैक्सेबल. ठीक है. सो इफ एनी एक्सपेंडिचर इज ऑब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉय बट इट इज पेड बाय द एम्प्लॉयर और reimbursed by the employer, then it is regarded as obligation of employee met by the employer. In such case, the amount paid or reimbursed by the employer is fully taxable and will be added in gross salary, and it will be taxable for government as well as for non government employees. ठीक है. मॉनेटरी हमेशा टैक्सेबल होती है. एग्जांपल्स देखो. Professional tax paid or reimbursed by the employer, we know that it is given as an exemption, but in case the employer is paying it, then it will be first added into the gross salary and then it will be allowed as a deduction. बट अगर इसको खाली एम्प्लॉय ने किया होता तो डायरेक्टली डिडक्शन मिलती, बट एम्प्लॉयर ने किया तो इट विल बी फर्स्ट एडेड बिकॉज इट विल बी फुल्ली टैक्सेबल. इट्स अ मॉनेटरी परक्विजिट. सिमिलरली, कार एक्सपेंसेस ऑफ एम्प्लॉय पेड और रीइंबर्स्ड बाय एम्प्लॉयर. कोई भी एम्प्लॉय की कोई कार है, उससे रिगार्डिंग सारे एक्सपेंसेस एम्प्लॉयर पे करता है. इट विल ऑलवेज बी टैक्सेबल. सैलरी ऑफ सर्वेंट ऑफ एम्प्लॉय पेड और रीइंबर्स्ड बाय द एम्प्लॉयर. कोई सर्वेंट है, उसकी सैलरी एम्प्लॉयर ही पे करता है, रीइंबर्स करता है. इट विल बी फुल्ली टैक्सेबल. Bills of gas, electricity, water paid or reimbursed by the employer. So any of the monetary perquisites, any of the monetary in case value is being paid or reimbursed by the employer, it will be taxable. Then comes next section. Section 17 subsection 2 clause 5, it is regarding to the insurance premium paid by the employer. Now imagine in case the employee has taken a life insurance premium. Life insurance, that is to protect, it's basically to indemnify the loss of the family members in case the employee died. इट्स लाइफ इंश्योरेंस. इट्स ये लाइफ के लिए होता है. अब इसमें एम्प्लॉयर अगर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम दे रहा है एम्प्लॉय का, तो इट इज डेफिनेटली it is not going to benefit the employer. It is for the benefit of the family, right? So it is always taxable for the employee because employer is paying on his behalf any kind of premium. तो एम्प्लॉयर को तो कोई फायदा नहीं मिल रहा है ना. So it will be taxable for the employee, but the employee can later on claim the deduction under section 80C from the gross total income. ठीक है. So it will be first added into the salary, but 80C में he can claim the deduction. जैसे प्रोफेशनल टैक्स में है ना कि एम्प्लॉयर ने पे किया, सो फर्स्ट इट विल बी एडेड बट उसके बाद डिडक्शन मिल जाएगा. सेम इज विद दिस पर्टिकुलर पॉइंट कि अगर एम्प्लॉयर ने कोई लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है एम्प्लॉय का, तो उस केस में इट विल बी फर्स्ट एडेड इनटू द ग्रॉस सैलरी, बट लेटर ऑन द एम्प्लॉय कैन क्लेम एन एग्जेम्पशन डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C. 80C में याद है ना क्या क्या होता है? PPF, life insurance, mutual funds. So there are many things there for which the employee can claim the deduction. Maximum limit होती है 1,50,000 की. So इसमें मिल जाएगा. But in case the employer is paying the medical insurance premium, wealth insurance premium or group insurance premium, then it will be exempt from the employees. Why? Because this is actually going to benefit the employer. अगर सपोज कोई एम्प्लॉय को कुछ हो जाता है, ठीक है, उसका जो भी जो एम्प्लॉय है उसने उसको सिक्योर करने के लिए मेडिकल इंश्योरेंस का प्रीमियम दिया हुआ है. अब ये ना मेडिकल अलाउंस की बात नहीं हो रही है. मेडिकल अलाउंस क्या होता है कि जो भी जो एम्प्लॉयर है उसको हर महीने एक अलाउंस दे रहा है कि तुम्हारा जो भी खर्चा हो रहा है उसको मैं एक अलाउंस दे रहा हूँ, आप उससे उसको पूरा कर सकते हो.
वो तो डेफिनेटली एम्प्लॉय की क्या है, इनकम। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, एम्प्लॉयर उसको सिक्योर कर रहा है बाय टेकिंग द मेडिकल इंश्योरेंस फॉर देयर एम्प्लॉयज। अब क्या कर रहा है, वो प्रीमियम पे कर रहा है। अब ये प्रीमियम क्यों पे कर रहा है कि कल को मेरा एम्प्लॉय की तबीयत खराब होगी ना, तो अब मैं उसको पैसा नहीं दूंगा, वो जो इंश्योरर मैंने जिससे इंश्योरेंस लिया हुआ है वो इसको पैसा देगा। ठीक है, तो इसमें एम्प्लॉय की कौन सी डायरेक्टली इनकम है, ये तो एम्प्लॉयर अपने लिए कर रहा है ना कि कल कोई बीमार होता है या मर जाता है या फिर इसको कुछ भी हो जाता है तो मुझे इंश्योरेंस पैसे देगी। ठीक है, जस्ट अ मिनट। ठीक है, सॉरी। सो इसमें क्या है कि एम्प्लॉयर को फायदा हो रहा है, वो प्रीमियम ले रहा है इस वजह से कि कल को कुछ भी होता है तो उसका पैसा जो है मुझे नहीं देना पड़ेगा, डायरेक्टली उसको जो इंश्योरर है वो दे देगा। सो इसमें ये डायरेक्टली एम्प्लॉय को फायदा नहीं कर रही है, इस वजह से उसकी ग्रॉस सैलरी में ये ऐड नहीं हो रही है, इट विल बी एग्जेम्प्टेड। ठीक है, वो मेडिकल अलाउंस था जो हमने इससे पहले डिस्कस किया था ना, जिसमें हम कह रहे थे कि इट इज फुल्ली टैक्सेबल। ठीक है, क्वेश्चन किया था ना हमने, जिसमें हमने उसको ट्रीट किया था एज अ पर्सनल अलाउंस, राइट। लेकिन यहाँ पे प्रीमियम की बात होती है। ठीक है, सो अगर एम्प्लॉयर कोई प्रीमियम पे कर रहा है मेडिकल इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस, वेल्थ इंश्योरेंस, उस केस में एम्प्लॉय के लिए इट विल बी एग्जेम्प्टेड। ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस में नहीं होगा, इट विल बी फर्स्ट एडेड, बिकॉज लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम में क्या होता है, फैमिली मेंबर्स जो होते हैं ना, डिपेंडेंट्स, उनको पैसा मिलता है। ठीक है, की इंश्योरेंस में क्या होता है कि जो की इंश्योरेंस पॉलिसी में एम्प्लॉयर को मिलता है, जिसमें की मैन सॉरी नॉट की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी में एम्प्लॉयर को मिलता है। लाइफ इंश्योरेंस में क्या होता है, डिपेंडेंट्स को मिलता है। सो इस केस में एम्प्लॉयर ऑल्दो ही इज पेइंग द प्रीमियम, बट इट इज काइंड ऑफ अ टैक्सेबल इनकम फॉर द एम्प्लॉय, क्योंकि वो पे कर रहा है बट एम्प्लॉय को उसको टैक्स पे करना पड़ेगा, बिकॉज इट्स काइंड ऑफ एन बेनिफिट विच इज गिवन टू द एम्प्लॉय। ठीक है, सो कोई भी बेनिफिट, कुछ भी मॉनेटरी या कुछ भी दिया जाता है हमेशा एम्प्लॉय के लिए वो टैक्सेबल होता है, क्योंकि वो इनडायरेक्टली मिल तो एम्प्लॉय को रहा है ना। बट यहाँ पे एम्प्लॉय को नहीं मिल रहा है, एम्प्लॉय क्या है, कल को बीमार हो जाता है तो अब उसको एम्प्लॉयर को कुछ नहीं देना, इंश्योरर देगा। तो ये एम्प्लॉयर का बेनिफिट है, इसलिए ये एग्जेम्प्ट होता है एम्प्लॉयज के लिए। क्लियर है सबको, कोई डाउट तो नहीं है? Any doubts to anyone? Should I move to next slide? Just give me a second.
ओके, सो सॉरी फॉर द डिस्टरबेंस। ठीक है, तो हम लोगों ने अभी तक क्या किया, मॉनेटरी परक्विजिट्स, जिनको ये भी बोला जाता है विच इज द ऑब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉय मेट बाय एम्प्लॉयर। दूसरी है इंश्योरेंस प्रीमियम। अब हमारी नेक्स्ट आती है दैट इज सिक्स्थ क्लॉज, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम। इट इज नॉट देयर इन योर सिलेबस। ठीक है, इसमें क्या होता है, यूजुअली द एम्प्लॉयर अलॉट्स द शेयर ऑफ द कंपनी टू इट्स एम्प्लॉय एट अ प्राइस विच इज वेरी एट कंसेशनल रेट, दैट विच इज वेरी लेस देन द मार्केट वैल्यू ऑफ सच शेयर्स। सो जो भी डिफरेंस होता है बिटवीन द मार्केट वैल्यू एंड द इश्यूड प्राइस, इट इज ऑलवेज टैक्सेबल, क्योंकि फायदा हो रहा है ना एम्प्लॉय का। जब भी फायदा होता है ना एम्प्लॉयर की वजह से, हमेशा वो ऐड होता है। ठीक है, बट इसका जो वैल्यूएशन है इट इज नॉट इन देयर इन योर सिलेबस। ज्यादा से ज्यादा हद मार के ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, बट वो भी नहीं आएगा क्योंकि आपकी गाइडलाइंस में लिखा हुआ है कि एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम में से क्वेश्चन नहीं देना, इट इज नॉट देयर इन योर सिलेबस। फिर आता है क्लॉज 8 विच इज अबाउट द फ्रिंज बेनिफिट्स। फ्रिंज बेनिफिट्स क्या होते हैं, दीज आर वेरी स्मॉल फैसिलिटीज which are provided by the employer to the employee, and these facilities are always non monetary in nature. ठीक है, that is why we have to calculate the monetary value and it will be calculated as per rule number 37. ठीक है, तो कैलकुलेशन वहां पे हमें स्टेप्स दिए हुए हैं कि हमें कैसे कैलकुलेट करना है, क्योंकि फ्रिंज बेनिफिट्स जो स्मॉल फैसिलिटीज होती हैं ये इनकी कभी भी हमें मॉनेटरी वैल्यू नहीं गिवन होती है। सो फर्स्ट फ्रिंज बेनिफिट आता है इंटरेस्ट फ्री और कंसेशनल लोन्स। क्या होता है कि जो एम्प्लॉयर होता है ना, वो अपने एम्प्लॉय को लोन भी देता है। ठीक है, काफी बार एम्प्लॉयर्स देते हैं कि आप हमसे लोन ले लीजिए, और जो उनका इंटरेस्ट रेट होता है इट इज यूजुअली लोअर देन द नॉर्मल मार्केट बैंक रेट्स। ठीक है, जो बैंक के एग्जिस्टिंग रेट्स होते हैं उनसे यूजुअली कम होता है, कंसेशनल रेंट, सॉरी रेंट बोल रही हूँ, रेट होता है वो। ठीक है, so the value of the perquisite shall be the excess of interest payable at the prescribed interest rate over interest, if any, actually paid by the employee or any member of his household. So जो भी difference होता है ना वो taxable होता है, जो उस टाइम पे प्रिस्क्राइब्ड इंटरेस्ट रेट है और जितना एम्प्लॉयर चार्ज कर रहा है, जितना मतलब एम्प्लॉय पे कर रहा है या उसकी कोई भी फैमिली मेंबर पे कर रहा है, तो जो भी डिफरेंस होता है इट इज काइंड ऑफ अ बेनिफिट फॉर द एम्प्लॉय एंड इट विल ऑलवेज बी टैक्सेबल। प्रिस्क्राइब्ड इंटरेस्ट रेट क्या होता है, इट इज द रेट विच इज चार्ज बाय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एज ऑन फर्स्ट डे of the relevant previous year in which the loan of the same type and for the same purpose advanced by it to the general public. So इसका मतलब जिस previous year में employee ने loan लिया है employer का, वही जो previous year है उसका first day, that is 1st April. ठीक है, the loan should be of same nature, it should be of same type and it should be for same purpose. इसका मतलब अगर employee ने housing कोई loan लिया है तो housing loan के applicable होंगे, पर्सनल लोन लिया है तो पर्सनल लोन के एप्लीकेबल होंगे, जो भी है मतलब सेम टाइप और सेम पर्पस के लिए एडवांस किया बैंक ने किसको, जनरल पब्लिक को, वो प्रिस्क्राइब्ड रेट होगा। The perquisites is to be calculated on the basis of maximum outstanding monthly balance. So हर मंथ वाइज, क्योंकि यूजुअली क्या होता है कि जो एम्प्लॉय जो लोन लेता है उसकी वो जो पेमेंट्स करता है वो सैलरी में से डिडक्ट कराता है कि ना हर साल 10-10 हजार, 15-15, 5-5 जितने भी हजार कटते जाएंगे। तो हमेशा मंथली वाइज ही उसका सेटलमेंट होता है, इसीलिए इनकम टैक्स के रूल्स में भी क्या है कि आप हर मंथली वाइज यू हैव टू कैलकुलेट दी इंटरेस्ट, और जो वो होगा, जो भी डिफरेंस इंटरेस्ट होगा, दैट विल बी द परक्विजिट वैल्यू। However, loans up to rupees 20,000, that is the aggregate principal amount, ठीक है, अप टू अगर कोई 20,000 का अगर लोन है, and loans for medical treatment specified in rule number 3A are exempted provided the same are not reimbursed under medical insurance. अगर कोई एम्प्लॉय ने 20,000 का लोन लिया है या कोई मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए लोन लिया है तो वो एग्जेम्प्टेड होगा, बट मेक श्योर कि उसका कोई ऐसा इंश्योरेंस नहीं लिया हो एम्प्लॉय ने जिससे वो रीइम्बर्स्ड हो जाए जो भी ट्रीटमेंट पे पैसा लगा है। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होगा तो इट विल बी एंटायरली एग्जेम्प्टेड। ठीक है, 20,000 तक का लोन या फिर कोई मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए लोन दिया है। ठीक है,
So suppose this is one of the illustration. So on 1st December 2020, इसका मतलब previous year 2021. ठीक है, सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लिया हमने 2021. An employer has taken a loan of rupees 3 lakhs. It means it is greater than 20,000 in any case, from the employer at an interest rate of 6% per annum. So this is the employer rate of interest. On that date, the interest charged by SBI was 9.5% per annum. But the interest charged by SBI on 1st April 2020 was 9%. So हमें बोला है प्रिस्क्राइब्ड रेट से मैच करना है. प्रिस्क्राइब्ड रेट क्या है? जो उसी प्रीवियस ईयर के फर्स्ट डे पे होगा. सो प्रीवियस ईयर क्या था? 2021. वो कब से शुरू हुआ? 1st अप्रैल से. 1st अप्रैल से शुरू हुआ तो उसका जो इंटरेस्ट रेट था उस टाइम पे इट वाज 9%. सो 9 होगा, 9.5 नहीं. जब लोन दिया है वो इंटरेस्ट रेट नहीं देखना, उस प्रीवियस ईयर का फर्स्ट डे. सो डिफरेंस क्या आया? 3%. This is the benefit which the employer has received from the employer. So this will be taxable. टैक्सेबल कैसे करना है? मंथली बेसिस पे. अब इसमें एक और स्टेटमेंट लिखिए. द एम्प्लॉय पेज ₹10,000 एट द एंड ऑफ एवरी मंथ टू द एम्प्लॉयर. ठीक है, इसका मतलब हर महीने 10-10 हजार रुपए वो पे कर रहा है. तो अब हम परक्विजिट वैल्यू निकालेंगे. सो सबसे पहले वी हैव टू see the months for which we have to calculate the perquisite value. So we have to calculate for December, January, February and March. So for 4 months. आउटस्टैंडिंग बैलेंस एज ऑन 31st December. फर्स्ट को तो उसने लिया है ना, तो 31st December को कितना होगा बैलेंस? 2,90,000. वाई? बिकॉज द एम्प्लॉय इज पेइंग 10,000 एट द एंड ऑफ एवरी मंथ. उसने 1st December को लिया और एंड में यानी 31st December को उसने 10,000 दे दिए, तो बचा कितना है? 2,90,000. So 2,90,000 into 3% is the benefit for 1 month. That is 1/12. It is coming out to be 725. Next, 31st January को क्या बैलेंस होगा? 2,80,000. So 2,80,000 into 3% for 1 month, 700. And 29 Feb को क्या होगा? 2,70,000. Again and again you have to calculate. So every month you have to calculate by calculating the outstanding balance. और फिर आप इन सारी चारों वैल्यूज को क्या कर दिया आपने? ऐड. So 2,750. This is the perquisite value which will be charged to tax. इसकी वैल्यू गिवन नहीं थी ना, हमने इसकी वैल्यू खुद निकाली है. तो ये निकाली है हमने which will be taxable. क्लियर है सबको ये? एनी डाउट्स टू एनीवन? ये भी क्वेश्चन बहुत कम आता है आपके एग्जाम्स में. जी बेटा. मैम हमने दिसंबर में 3 लाख क्यों नहीं चार्ज किया? क्योंकि होल दिसंबर 3 लाख उसके ऊपर पेंडिंग था, वो लास्ट डे में उसने पे किया है 10,000. हाँ, तो हम लोग लास्ट डे का जैसे आउटस्टैंडिंग जो बैलेंस होता है हमेशा लास्ट डे ऑफ द मंथ निकाला जाता है. सो लास्ट डे ऑफ द मंथ में उसने 10,000 पे कर दिया, इसलिए 2,90,000. जैसे 3 लाख उसने 1st December को लिया, ठीक है, लेकिन उसने ये बोला है कि एम्प्लॉय 10,000 एट द एंड ऑफ एवरी मंथ पे करेगा. इसका मतलब उसने लोन लेने के बाद 31st December को फर्स्ट 10,000 की पेमेंट कर दी होगी, इसलिए 2,90,000 हो गया. आपको एंड का बैलेंस देखना है, आपको ओपनिंग का बैलेंस नहीं देखना है, क्लोजिंग बैलेंस देखना है. ठीक है. आप सपोज यहाँ पे वो ले लेता, सपोज यहाँ पे उसने 30th November को लिया होता अगर लोन, ठीक है, 30th November को, और ऐसे लिखा होता कि एम्प्लॉय 10,000 नेक्स्ट मंथ के एंड से पे करना शुरू करेगा, तो यहाँ पे 30th November का पूरा 3 लाख आ जाता है. ठीक है, यहाँ पे डेट्स ऐसे गिवन है इसलिए 10,000 सब्ट्रैक्ट करना पड़ रहा है. जहाँ पे डेट्स में नहीं लिखा कि उसने पे किया होगा वो पूरा हो जाएगा. ओके मैम. नेक्स्ट, फर्स्ट क्या था? फ्रिंज बेनिफिट हमारा इंटरेस्ट फ्री और कंसेशनल लोन्स. अब है हमारा सेकंड, फैसिलिटी ऑफ गेस्ट हाउस एंड हॉलीडे होम्स. सो अगर कोई भी ऑफिशियल टूर के लिए एम्प्लॉयर बाहर जाता है और वो कोई गेस्ट हाउस यूज करता है एम्प्लॉयर का, देन द बेनिफिट ऑफ द गेस्ट हाउस विल नॉट बी टैक्सेबल, बिकॉज उसका पर्पस क्या था? ऑफिशियल पर्पस था, इस वजह से इट विल नॉट बी टैक्सेबल. अगर वो ऑफिशियल टूर के लिए जाता है बट उसकी फैमिली मेंबर उसको अकम्पनी करता है, तब उस एम्प्लॉय के लिए तो इट विल बी एग्जेम्प्टेड, बट फैमिली मेंबर के लिए इट विल बी टैक्सेबल. ठीक है, क्योंकि ऑफिशियल में फैमिली का तो कोई काम नहीं था, बट अगर फैमिली वो लेकर गया है तो उसका बेनिफिट विल बी टैक्सेबल फॉर द एम्प्लॉय. अगर ऑफिशियल जो उसका टूर था दैट इज एक्सटेंडेड एज अ वेकेशन,
ठीक है, सो जो एक्सटेंडेड पीरियड था उसका इट विल बी टैक्सेबल, क्योंकि आपको काम सिर्फ 2 दिन का था ऑफिस का काम, आपने उसको 5 डेज में कन्वर्ट करके बाकी 3 दिन आप घूमे वहां पे, तो जो भी एक्सटेंडेड पीरियड है इट विल बी टैक्सेबल। ठीक है, और द टैक्सेबल वैल्यू विल बी टेकन एज द रेंट चार्ज बाय होटल इन द नियर बाय एरिया विच प्रोवाइड सिमिलर फैसिलिटीज एज अवेलेबल इन द गेस्ट हाउस। ठीक है, गेस्ट हाउस तो एम्प्लॉयर का था, वो कुछ चार्ज तो कर नहीं रहा था, तो कैसे कैलकुलेट करोगे आप? उसके जो नेबर एरियाज, नेबर में जो एरियाज हैं वहां पे जो ऐसे ही सेम काइंड ऑफ होटल्स बने हुए हैं और जो वो चार्ज कर रहे हैं नॉर्मल पब्लिक से, आप उसको कंसिडर कर लोगे। ठीक है, अभी मैं डिस्कस कर रही हूँ, फिर जब क्वेश्चंस आएंगे तो एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन कर लेंगे। देन नेक्स्ट इज फैसिलिटीज ऑफ मील्स, टी एंड स्नैक। तो कोई भी ऐसी फैसिलिटी है तो यू हैव टू डिवाइड दिस इनटू 2 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट विल बी ओनली फॉर मील एंड द सेकंड पार्ट विल बी फॉर टी एंड स्नैक्स। टी और स्नैक्स आर ऑलवेज फुल्ली एग्जेम्प्टेड। ठीक है, टी और स्नैक्स आपके हमेशा एग्जेम्प्टेड रहेंगे एम्प्लॉइज के। टी विल इंक्लूड ऑल काइंड ऑफ नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक्स। ठीक है, और नॉन अल्कोहलिक होने चाहिए जो भी टी वहां पे या स्नैक्स में जो भी सर्व हो रहा है। अल्कोहल सर्व्ड बाय द एम्प्लॉयर विल बी टैक्सेबल। ठीक है, अगर कोई अल्कोहल अगर कुछ सर्व कर रहा है एम्प्लॉयर तो इट विल बी टैक्सेबल। मील्स में क्या होगा? मील्स आर टैक्सेबल एंड द टैक्सेबल वैल्यू इज एक्सपेंडिचर डन बाय द एम्प्लॉयर। सो कोई भी खाना वाना वो दे रहा है तो इट विल बी चार्ज टू टैक्स, इट विल बी टैक्सेबल। और जो वैल्यू होगी जितना भी खर्चा लगा है एम्प्लॉयर का, बट गवर्नमेंट ने ₹50 पर मील को एग्जेम्प्ट भी किया है टैक्स से। मतलब जितना उसका खर्चा लग रहा है एम्प्लॉयर का माइनस ₹50 पर मील विल बी एग्जेम्प्टेड। ठीक है, और अगर कोई भी अमाउंट चार्ज किया है एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय से कि मतलब मील सर्विसेज होगी बट यू हैव टू पे सम अमाउंट, तो दैट विल बी अलाउड टू बी रिड्यूस, वो अमाउंट वो डिडक्ट हो जाएगा। And in case meals are served in any remote area or offshore installation, then these are fully exempted. ठीक है, remote areas are the area where population is less than 20,000 in the radius of 40 kilometers. This is the definition, but ऐसे questions नहीं आते हैं। या तो लिखा होगा meal will be served in remote areas या offshore installation। अगर ऐसा कोई केस है तो it will be fully exempted। ठीक है, सो जब भी कोई फैसिलिटी ऐसी आती है जिसमें मील्स भी हैं और टी और स्नैक्स भी हैं, तो हमेशा इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेना। टी स्नैक्स हमेशा आपके एग्जेम्प्ट रहेंगे, नॉन अल्कोहलिक होने चाहिए बस, और मील्स हमेशा टैक्सेबल रहेंगी, वैल्यू होगी एक्सपेंडिचर और उसमें से एग्जेम्प्ट होगा ₹50 पर मील, और अगर कुछ एम्प्लॉय ने पे किया तो दैट विल बी अलाउड टू बी रिड्यूस्ड। क्लियर है सबको ये? एनी डाउट्स टू एनीवन? कोई डाउट है तो पूछो इसमें। Should I move? मैम अगर दोनों का टोटल में अमाउंट दिया हुआ देन हम कैसे डिवाइड करेंगे उन्हें? ऐसे नहीं होगा बेटा, ऐसे कोई क्वेश्चंस नहीं आएंगे जिसमें टोटल होगा। या तो मील्स के क्वेश्चन आएंगे या फिर टी एंड स्नैक्स के क्वेश्चन आएंगे, या फिर ऐसे लिखा होगा कि मील्स का इतना था, टी और स्नैक्स का इतना था। कभी भी टोटल नहीं आएगा ऐसे। अगर आता है, सपोज अगर टोटल आता है तो आप उसको पूरा टैक्सेबल कर देना ऑन द अजम्पशन कि मील्स आर टैक्सेबल, तो मील्स के साथ ये टी और स्नैक्स भी सब मतलब सर्व हो रहे हैं। आप अलग से मत करना फिर उसको। वैसे ऐसे क्वेश्चंस है नहीं आपके कोई भी। ओके मैम। ठीक है, नेक्स्ट डी फ्रिंज बेनिफिट इज वैल्यू ऑफ गिफ्ट और वाउचर और टोकन। सो अगर कोई भी इन काइंड अगर दिया है तो इट विल बी एग्जेम्प्टेड अप टू ₹5,000 पर एनम। ठीक है, साल में 5,000 तक का इन काइंड गिफ्ट, कोई वाउचर या कोई भी टोकन मिला है, इट विल बी एग्जेम्प्टेड। बट अगर उसकी कोई मॉनेटरी या कन्वर्टेबल इनटू मनी है, कोई भी ऐसा गिफ्ट या वाउचर, इट विल ऑलवेज बी टैक्सेबल। इसका मतलब इन शॉर्ट अगर कोई भी मॉनेटरी वैल्यू आ जाती है, हम पहले ही कर चुके हैं कि अगर कोई भी चीज मनी के फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है तो इट विल ऑलवेज बी टैक्सेबल।
तो अगर उसने कोई गिफ्ट दिया है, कोई वाउचर या टोकन, अगर वो मनी के फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है, जैसे अमेजोन वाउचर दिया है या कोई भी ऐसा उसने वाउचर या कोई गिफ्ट वाउचर दिया है, तो इट इज फुल्ली टैक्सेबल, क्योंकि आपको पता है इट इज इक्विवेलेंट टू गिफ्ट, मतलब इट इज इक्विवेलेंट टू मनी ओनली। अगर कोई ऐसा वाउचर दिया है तो इट विल बी टैक्सेबल। देन E is credit card provided by the employer, club membership if it is provided by the employer. So इसका treatment क्या होगा? If it is wholly and exclusively for official purposes, then it is exempt. ठीक है, official purposes के लिए it is exempt. For personal purposes, it is always taxable, and the perquisite value will be the amount of bills paid by the employer. ठीक है, इजी है, पर्सनल पर्पस टैक्सेबल, ऑफिशियल पर्पस एग्जेम्प्ट। और कैसे पता चलेगा पर्सनल को कितना टैक्सेबल करना है? जितना भी बिल आ रहा है उसका, जो एम्प्लॉयर भर रहा है। अगर इफ इट इज फॉर ऑफिशियल एज वेल एज पर्सनल पर्पसेस, देन इट इज टैक्सेबल and perquisite value will be the amount of bills paid by the employer. अगर दोनों पर्पस के लिए है तो दोनों ही टैक्सेबल होंगे, फिर we will not divide it. या तो ऐसा हो जाए कि फॉर ऑफिशियल और एज वेल एज पर्सनल पर्पसेस के लिए अमाउंट का बाइफर्केशन भी दिया हुआ है, ठीक है, कि 5,000 इज फॉर ऑफिशियल एंड 2 इज फॉर पर्सनल पर्पसेस। उस केस में हम लोग कर सकते हैं, बट व्हेनेवर द अमाउंट इज नॉट रिटर्न एज the separate figures are not given, the consolidated figures are given, then it is always taxable. A perquisite value is the amount of bills paid by the employer. हाँ, अगर एम्प्लॉयर कुछ रिकवर करता है फ्रॉम द एम्प्लॉय या एम्प्लॉय कुछ पे करता है उससे रिगार्डिंग, तो इट विल बी अलाउड टू बी रिड्यूस्ड। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि वो कुछ पे करता है और उसको रिड्यूस ना किया जाए, वो रिड्यूस हो जाता है। देन if employer is owner of movable assets except any kind of car, bike, etc., and it is used by employees, it's very very important for the examination point of view. ठीक है, कि एम्प्लॉयर इज द ओनर, ठीक है, उसके पास कोई मूवेबल एसेट्स है कार और बाइक्स को छोड़कर, ठीक है, उस केस में उसने कुछ एम्प्लॉय को दिए हुए हैं यूज करने के लिए, सो उनका टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगा? कंप्यूटर्स और लैपटॉप्स आर ऑलवेज फुल्ली एग्जेम्प्टेड। अब खुद सोच के देखो, हम लोग कंपनीज में काम करते हैं तो हमेशा लैपटॉप मिलता है, क्या वो हमारी टैक्सेबल इनकम में थोड़ी ऐड होता है? हालांकि एम्प्लॉयर इज द ओनर एंड वी आर द वन हु आर यूजिंग इट, बट व्हाई वी आर यूजिंग इट? फॉर एंटायरली ऑफिशियल पर्पसेस, राइट? इसलिए तो देता है ना कि ऑफिस में काम कर लो, ऑफिस का काम कर लो। हम पर्सनल काम करते हैं, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट द पर्पस इज एंटायरली फॉर ऑफिशियल पर्पसेस, सो इट इज फुल्ली एग्जेम्प्टेड। बट इसके अलावा अगर कोई भी उसने मूवेबल असेट दिया हुआ है, सो उसकी परक्विजिट वैल्यू विल बी द 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ असेट, इग्नोरिंग द डेप्रिशिएटेड वैल्यू। मतलब कोई भी रिटन डाउन वैल्यू आपको नहीं लेनी है, यू विल ऑलवेज हैव टू टेक द कॉस्ट ऑफ द असेट, जितने में वो खरीदा गया, ठीक है। एनी अमाउंट पेड और रिकवर्ड बाय द एम्प्लॉयर फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर विल बी अलाउड टू बी रिड्यूस्ड, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, अभी कार एंड बाइक का भी आएगा। तो अगर किसी मूवेबल असेट का एम्प्लॉयर इज द ओनर, सो हमें बस याद रखना है कि कंप्यूटर लैपटॉप एग्जेम्प्टेड है, उसके अलावा कोई भी मूवेबल असेट हो, 10% of cost of 10% per annum of the cost of asset will be taken as the perquisite value, और जो भी अमाउंट है it is allowed to be reduced. Then any kind of sale or transfer of movable assets by employer to employee. अगर एम्प्लॉयर कोई भी ट्रांसफर करता है मूवेबल असेट या सेल करता है इन द नेम्स ऑफ द एम्प्लॉय, उस केस में द परक्विजिट वैल्यू विल बी द बुक वैल्यू ऑफ द असेट माइनस द सेल प्राइस, ठीक है, जो भी उस टाइम पे रिटन डाउन वैल्यू होगी उसकी, माइनस द सेल प्राइस ऑफ द असेट, व्हाटएवर द प्रॉफिट इज देयर, इट विल ऑलवेज बी टैक्सेबल फॉर द एम्प्लॉय, ठीक है। सो इट विल बी द परक्विजिट वैल्यू, and the book value will be the cost of asset minus depreciation of asset for every completed year from the date of the purchase, ठीक है। So we have to ignore the fraction of the year. It means for every completed year only we have to depreciate the asset, ठीक है। So we have to ignore the fractions, and जैसे ही आपका book value determine हो जाता है, आपको rate of depreciations हर assets के different given है। कंप्यूटर, लैपटॉप, स्टोरेज डिवाइस, डिजिटल डायरीज और प्रिंटर्स, इसका है 50% ऑफ रिटन डाउन वैल्यू, कार का 20% ऑफ रिटन डाउन वैल्यू,
अदर एसेट्स का इट इज 10% SLM, दैट इज स्ट्रेट लाइन मेथड। ठीक है, आपको पता है ये डेप्रिसिएशंस के मेथड होते हैं। सो कंप्यूटर, लैपटॉप और उन्हीं के एरियाज की इट इज 50%, रिटन डाउन वैल्यू, कार का भी रिटन डाउन वैल्यू है 20% और उसके अलावा हर किसी का है 10% स्ट्रेट लाइन मेथड। But we have to make sure that this in case the sale is after 10 years, then it is exempted under the income tax act। ठीक है, तो ज्यादा अगर 10 साल से पुरानी कोई चीज बेच रहा है तो वो exempted है, उसके अलावा टैक्सेबल है। ठीक है, सो दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चन, ये बाकी फिर हम कल करेंगे। ठीक है, so suppose on 1st August 2017, ABC company has purchased a car of rupees 7 lakhs and it is sold to employee for rupees 2 lakhs on 31st March 2021. Calculate the taxable value for employee। ठीक है, so उसने खरीदी कब थी? 1st August 2017। so अभी हम वन ईयर लेकर चलते हैं, from 1st August 17 to 1st August 18 to 1st August 19 to 1st August 20। पूरे 12 मंथ्स हैं। सो 7 लाख का था, तो हमें पता है कार पे कितना होता है 20%। सो 7 लाख इंटू 20% इज 1,40,000। सो 1st August 2018 को द रिटन डाउन वैल्यू विल बी 7 लाख माइनस 1,40,000, 5,60,000। इस पे 20% किया, आया 1,12,000। अगेन एट 1st August 2019 the opening balance will be 5,60,000 minus 1,12,000, it will be 4,48,000। इस पे दोबारा लगा 20%, so it will be 89,600। फिर subtract किया 89,600 from 4,48,000, it has come out to be 3,58,400। we have to take the completed years only, so means अगस्त से लेके 31st March 2021 we will not take into account because we have to ignore the months। ठीक है, सो पूरे पूरे साल का लगाया, तो अब हमारी बुक वैल्यू आ गई 3,58,400। सेलिंग प्राइस इज 2 लाख, इट मींस द परक्विजिट वैल्यू इज 1,58,400। ठीक है, इस तरीके से आपको क्वेश्चंस करने हैं। कोई डाउट है किसी को तो पूछो। आई वांट टू वाइंड अप द क्लास नाउ।